Hello everyone, my name is Vijay Kumar and I am an educator of geography, and since the last 6 years I have made many aspirants to crack the civil services with geography as optional. So I have been creating many videos on the basis of how to approach geography as optional and how to make geography very easy for you. Clear? So because there is wrong notion related with geography that it has vast syllabus and it can't be covered so that easily. So I have come up with this particular syllabus interpretation, and this is now which I am going to do. I am going to do at macro level. So later on, by taking each particular aspect, I'll also design the syllabus interpretation and disintegration at very micro level. So first let me give you an idea related with geography syllabus, which is present in your geography optional, where you can score 320 plus in your civil services. So in general, optional paper comprises of two papers. So paper number 1 and paper number 2. So if you consider, each paper would be having two divisions, part A, part B, and here also we would be having part A, part B. So it is very simple. If you see in paper 1, part A comprises of geomorphology, where we would be studying about interior of the earth and how the modifications happened on the earth's surface and what are the forces acting on it, and many other questions like how the continents have been formed, how the fold mountains have been formed, what is volcanism, earthquake, and how the slopes would be developed, how different landforms would be created. So all this we would be reading in this geomorphology. However, you would be reading this in your general studies as well. But here in this particular optional, you would be reading bit advanced level of geomorphology, like some theories associated. So there are many geomorphologists who have given their theories on related with landform development. So those theories wouldn't be included in your general studies. Those advanced level of geomorphology you would be studying over here. Rest, however, you would be covering some part in your GS. And coming to climatology, you would be reading about the climate, about the temperature distribution, about the pressure zones, about air masses, about the wind system, about the classification of climates, about the rainfall, about the cyclones, and all these aspects related to atmosphere you would be reading in climatology. So this, however, you would be covering in your general studies as well, but not in a deeper manner. Here you have to go beyond what actually is expected. So there are some advanced concepts like applied climatology, Köppen's classification, Traberta's climatic classification, Thornthwaite climatic classification. Those things we would be reading over here in this particular climatology. So which won't be covered in general studies. That is the major difference. And while coming to oceanography, there you would be reading about different oceans and its bottom reliefs and the salinities of the oceans, and you would be reading about different temperature aspects, and you would be reading about coral reefs, marine resources, and all. So this is also a bit covered in GS, but most advanced you would be covering it in optional. And coming to biogeography, there you would be studying about different soils, its formation, genesis, and other related aspects. When you come to environmental geography, you would be reading about different ecosystems, ecology, environmental aspects, and some contemporary environmental issues. So this entirely becomes your part 1, which covers approximately 125 marks. So each paper comprises of 250 marks, that everyone knows. So individually I am calculating it. Part A covers somewhere around 125. Coming to part B, somewhat it is philosophical in nature. Somewhat dry aspects would be present, but where I will be making those concepts very much effective so that you will be enjoying this aspect. See, generally this part B comprises and it mostly deals on human geography. In the first part, we were reading about physical geography. Here you would be reading about human geography. It would appear like it is bore. So when you listen to these lectures, when you read these aspects, it appears like these subjects are like bit dry aspects where we have to cover it most effectively, but we will make it most effective for you. Like if you see, you have different aspects like one line of syllabus says perspectives of human geography. There you would be studying about the philosophical aspects of the geography, like how geography has got evolved, what were the bilingual thoughts when geography has got evolved as discipline, and concepts like environmentalism, dualism, dichotomy,
aerial differentiation. So these kind of philosophical aspects of geography you would be learning in perspectives. So this is chapter number 1 in part B, and chapter number 2 deals with economic geography, where you would be reading about different resource distribution around the world and energy crisis problems जितने भी हैं वो डिस्कस करेंगे वहाँ पे, and also we would be seeing about agriculture distributions, and also we would be seeing about minerals and all the resources जितने भी economy से related है ये सारे economic geography में cover हो जाएगा. This is at the world level. And अगर थर्ड देखें population and settlement geography, like how population determined theories are, and what are the population zones where we have high density of population, medium density, lower density, and what are the reasons behind it, and what geographers have commented on it, and what are the theories which were developed, that we would be seeing. And in settlement geography we would be seeing about urban rural settlements and rural urban fringe, and apart from that how the settlement patterns would be developed, how a radial city would be developed, what is the concept of smart city. So these kind of settlement patterns which would be developed in a structured way. See, we know it in like open layman way, but here we would be seeing it in a structured way. Apart from that, we'll also see regional planning, how regional planning is very effective in controlling the problems, in tackling the problems, in acting with the challenges which are present. So what are the theories, what is the concept of region, ये region का क्या है ऐसा मसला, what actually is region, so उसमें planning कैसे करा जाता है, what would be the best effective method where you can do the planning over there, that we would be learning over here. And models, laws and theories is nothing but all the above concepts, like in economic geography, population settlement geography and regional planning, we would be having certain theories, certain laws, certain models which were given by different geographers. All these combinedly we will however differentiate it and read. However, the concepts like Alfred Wegener, like Weber's industrial location theory, clear. So these kind of theories which are present we would be reading here itself, but separately once again we will be revising over here. So this is somewhat bit dry, but we will make it very effective for you. And part 2 comes with physical setting, like जहाँ पे इंडिया का हिमालयस है, physiographic divisions है, आपको पता ही है, हिमालयस, ग्रेट प्लेन्स, डेक्कन प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन्स, एंड वी हैव 2 आइलैंड ग्रुप्स, दैट इज अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. इसका फॉर्मेशन क्या हुआ था, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, एंड क्लाइमेट जो भी है, इंडिया के मानसून एंटर कैसे होगा, क्लाइमेटिक रीजन्स क्या बनेंगे, सीजन्स क्या बनेंगे, इसके मानसून पे जितने भी फैक्टर्स है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, एल नीनो, ला नीना, एल नीनो मॉडिकी, ला नीना मॉडिकी, सदर्न ऑसिलेशन, एंड ऑल्सो इंडियन ओशन डाइपोल, इंडियन ओशन डबल डिप, ये वॉकर सर्कुलेशन होता क्या है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या है, साइक्लोनिक रेनफॉल क्या है, ये सारे के सारे जितने भी चीज़ आप आज तक पढ़े नहीं है, ये सारे के सारे हम कवर करेंगे फिजिकल सेटिंग में. एंड जितना इंडिया का रिसोर्सेस है ये तो पता ही है, लैंड रिसोर्सेस हैं, मिनरल रिसोर्सेस हैं, सॉइल्स है, सो ऑल दीज रिसोर्सेस वी वुड बी रीडिंग. ये रिसोर्सेस इसीलिए याद रखना ज़रूरी है क्योंकि सॉइल्स अगर हमें पता है तो एग्रीकल्चर का आइडिया लगा सकते हैं. लाइक इन दोस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉइल, लाइक ब्लैक सॉइल कॉटन, एल्यूवियल सॉइल ऑल द क्रॉप्स, रेड सॉइल पे पल्सेस बनेंगे, लैटरेट सॉइल पे कैशूज बनेंगे, एंड कॉफी एंड टी प्लांटेशन के लिए लैटरेट सॉइल की जरूरत है. ठीक है, सो ये एग्रीकल्चर पे आइडिया पाने के लिए हमें ये पता होने चाहिए ये रिसोर्सेस कहाँ बनता है. इट इज नॉट ओनली एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज कहाँ पे लोकेटेड है. फॉर एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लोकेटेड एट जमशेदपुर. ये टिस्को जब पहला उसका प्लांट एस्टेब्लिश किया था, क्यों जमशेदपुर में एस्टेब्लिश किया था, वाई नॉट इन सम अदर रीजन, धारवाड़ प्लेट्यू में क्यों एस्टेब्लिश नहीं किया था, मैंगलोर के पास क्यों एस्टेब्लिश नहीं किया था. ये सारे अगर आपको पता होना है तो आपको रिसोर्स के बारे में आउटलाइन नॉलेज तो बनानी है. सो यू शुड हैव ग्रेटर अमाउंट ऑफ नॉलेज ऑन रिसोर्सेस सो दैट ये जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, एग्रीकल्चर हैं, ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा. ठीक है, एंड ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ट्रेड जो भी हैं, सो इसमें प्रॉब्लम्स क्या है, चैलेंजेस क्या है, नेटवर्किंग डेवलप कैसे करेंगे, ये सारे हम देखेंगे इस पेपर 2 में. एंड पेपर 2 का पार्ट भी आते ही ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे कल्चरल सेटिंग, जो कल्चरल रीजन्स ऑफ इंडिया हैं, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, लिटरेसी रेट है, सेक्स रेशियो है, ये सारे यहाँ पे पढ़ना पड़ता है. एंड उसके बाद पॉलिटिकल ज्योग्राफी, लाइक इंडिया का जो भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, पॉलिटिकल बॉर्डर्स पे प्रॉब्लम्स हैं, ये लाइक साउथ चाइना सी कुछ प्रॉब्लमेटिक बन रहा है आजकल, नहीं तो इंडियन ओशन में चाइना आके कुछ और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. ठीक है, सो ये सारे हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे. तो रीजनल प्लानिंग, लाइक इंडिया में स्मार्ट सिटीज़ का डेवलपमेंट हुआ है, उसके बाद 100 स्मार्ट सिटीज़ दिए हैं,
तो वो स्मार्ट सिटीज हाउ अर्बन प्लानिंग को डेवलप करेंगे, सो ये अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कैसे होगा, ये सारे हम रीजनल प्लानिंग एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। इसके बाद कंटेम्प्रेरी इश्यूज लाइक उत्तराखंड में फ्लड्स आ गया, नहीं तो असम में फ्लड्स आ गया, नहीं तो बिहार में फ्लड्स आ गया, वेस्ट बंगाल में फ्लड्स आ गया, नहीं तो गोदावरी बेसिन में फ्लड्स आ गया। इसका क्या राज था, मतलब उसका पीछे एक्चुअल रीजन क्या था, वो डिजास्टर मैनेज कैसे कर पाते हैं। नहीं तो साइक्लोन हिट किया था एम्फन वेस्ट बंगाल उड़ीसा पे, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट, उसको हम मैनेज कैसे करते हैं। नहीं तो कुछ एनवायरमेंटल इश्यू आ गए, ये सारे हम कंटेम्प्रेरी इश्यूज में देखेंगे। इससे अलावा मैप पॉइंटिंग भी है, तो वो मैप पॉइंटिंग हम अलग से देखते हैं। तो इतना सारा सिलेबस जितने भी हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल में, सो ये पढ़ने की वजह से लाइक बहुत लोगों को ये दिक्कत होता है यार इतना क्यों पढ़े, कितने किताब पढ़े। इसके लिए मैं रिसोर्सेस के बारे में अगले सेशन में एक्सप्लेन करूंगा आपको, बट आप अभी ये जान लीजिए ये सिलेबस तो लाइक ऐसा सीक्वेंशियल ऑर्डर में देखे तो आपको बहुत आसान नहीं दिखेगा, दिस विल बी मोर कॉम्प्लिकेटेड। बट मैं बताऊं फॉर एग्जाम्पल, यहां पे जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ लिया, यहां पे फिजिकल सेटिंग समझ में आ जाएगा। जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ने के बाद फिर हिमालयस फॉर्मेशंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है हिमालयस कैसे फॉर्म हुए थे। तो यहाँ पे क्लाइमेटोलॉजी इंक्लूड हुआ, यहाँ पे जितने भी क्लाइमेटिक एस्पेक्ट्स है वो पता लग जाएंगे, एल नीनो, ला नीना, मानसून की कॉन्सेप्ट क्या आई। एंड ओशनोग्राफी पढ़ा दिया, इंडियन ओशन का जितने भी ओशनिक बॉटम रिलीफ है ये तो पता ही है, ठीक है। बायो जियोग्राफी एंड एनवायरमेंटल जियोग्राफी वैसे इंटरलिंक्ड है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए पार्ट बी में जो भी इकोनॉमिक ज्योग्राफी आप पढ़ते हैं वर्ल्ड का, तो इसको इंटरलिंक करिए रिसोर्सेस, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर से, मेक इट एज वन ब्लॉक इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ठीक है। सो हमें पता है ब्राजील इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी। यार कहाँ ब्राजील है, लाइक ये तो साउथ अमेरिका में है, ये तो पता ही है हमें, बट इतना तो भी पता है दैट कर्नाटका इज ऑल्सो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी, है ना। सो जब हम वर्ल्ड के बारे में रिसोर्सेस पढ़ेंगे, ये नहीं कि इंडिया के बारे में पता नहीं करेंगे, जब वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे इंडिया का भी पढ़ लेंगे, लाइक कर्नाटका इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन इंडिया, ठीक है। शुगर केन लीडिंग प्रोड्यूसर ब्राजील, इंडिया में उत्तर प्रदेश है। श्रीलंका इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टी, इंडिया में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश लीडिंग प्रोड्यूसर है। एंड इन वर्ल्ड लेवल केरला लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस, इंडिया इज लीडिंग प्रोड्यूसर, वैसे इंडिया में केरला है। वर्ल्ड पे बांग्लादेश है, जूट प्रोडक्शन पे, इंडिया में वेस्ट बंगाल बन जाता है। कॉटन वर्ल्ड में इजिप्ट हो गया, इंडिया में अगर आप देख लीजिए लाइक गुजरात एंड महाराष्ट्र बेल्ट हो जाएगा। सो जब ये वर्ल्ड कप पढ़ेंगे तब इंडिया का एसोसिएशन बनाना है, सो वी हैव टू लिंक दिस कॉन्सेप्ट्स एंड रीड। एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स यूएसए में जो है, इंडिया में जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, बट इंडिया में थोड़ा ये डेबिटनेस एंड इंश्योरेंस का हिस्सा जो भी है, ये इश्यूज बहुत इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। ऐसा नहीं कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जर्मनी पे, रूर रीजन पे डेवलप हुआ हो एंड इंडिया पे कुछ अलग रीजन से यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है। सो छोटा नागपुर प्लेट्यू हो, चाहे वो यूएसए है या मेक्सिको है या रशिया है, इंडस्ट्री तो वही रीजन्स पे लगाएंगे जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वहां पे बिना रॉ मटेरियल के हम जबरदस्ती इंडस्ट्री वहां पे लाइक एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। सो ऑलमोस्ट सिमिलर दिखेंगे। सो जब ये पढ़ेंगे आप, इंटरलिंकेज ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2 विल गिव यू मोस्ट अप्रोप्रिएट अप्रिशिएशन ऑफ दिस पर्टिकुलर ज्योग्राफी ऑप्शनल। और एक एग्जांपल देता हूं, यहाँ पे पॉपुलेशन सेटलमेंट पढ़ लिया, यहाँ पे कल्चरल सेटिंग एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी पढ़ेंगे। सो ये दोनों मिलजुल के करेंगे। एंड यहाँ पे जब रीजनल प्लानिंग पढ़ लिया, यहाँ पे रीजनल प्लानिंग पढ़ लेंगे। यहाँ पे मॉडल्स, लॉस एंड थ्योरी पढ़ेंगे तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे। और कंटेम्प्रेरी इश्यूज तो पता ही है, जहां जहां पे भी कंटेम्प्रेरी इश्यूज है ये तो सबको पता है। लाइक ऐसा इंटरलिंकेज करने से ज्योग्राफी सिलेबस जो भी है ये सिर्फ 5 ब्लॉक में दिखेगा आपको। ब्लॉक नंबर 1 फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ पेपर 1 along with physical setting. Block 2 economic geography of paper 1 along with economic geography of paper 2. Part 3 population and settlement geography of paper 1 and population and settlement geography of paper 2. Part 4 regional planning of paper 1 and regional planning of paper 2. Part 5 perspectives का एक अलग, Part 6 contemporary issues and rest of miscellaneous thing.
सो कुल आपको मिला के 6 ब्लॉक्स को एफिशिएंटली पढ़ना है। फिजिकल हो गया, फिजिकल में क्या क्या आता है, पूरा फिजिकल ज्योग्राफी प्लस फिजिकल सेटिंग। सेकेंड ब्लॉक हो गया इकोनॉमिक ज्योग्राफी। थर्ड ब्लॉक क्या होगा, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी। तो फोर्थ ब्लॉक क्या होगा, रीजनल प्लानिंग, है ना। सो रीजनल प्लानिंग एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी होगा, ठीक है। एंड फिफ्थ ब्लॉक क्या होगा, पर्सपेक्टिव्स, ये अलग है, मतलब कोई भी ब्रांच से मिला जुला नहीं है। नेक्स्ट क्या होगा, कंटेम्पररी इश्यूज होगा, करंट अफेयर्स होगा एंड मिसलेनियस एस्पेक्ट्स होगा। अगर ये 6 ब्लॉक्स को आप अच्छे से कर लिए तो तब कहां से दिक्कत आएगा आपको, ज्योग्राफी समझने में दिक्कत है तो अगर कोई भी अच्छे से समझाए तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शनल वेर यू कैन स्कोर मोर देन 350 प्लस एज वेल। सो आप जब ऑप्शनल चूज करेंगे ये सारे खुल मिला के देख लीजिए एक बार। सो वंस अगेन यू डोंट फॉल इन द ट्रैप लाइक कुछ भी ऑप्शनल, अगर इस बार एंथ्रोपोलॉजी रैंक 1 आ गया तो चलो हम एंथ्रोपोलॉजी को शिफ्ट हो जाते हैं। सो इस बार कोई मैथमेटिक्स ऑप्शनल लिया एंड ही इज ऑल इंडिया रैंक 1, हम मैथमेटिक्स को शिफ्ट हो जाते हैं, ऐसा नहीं होगा। सो ऑप्शनल को आप चूज करने से पहले 100 बार सोचिए एंड जो भी सिलेबस है ये दिक्कत क्यों है उसको हम आसान कैसे बनाएं, इस तरीके से आप अगर देखें तो इट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। एंड ये ज्योग्राफी तो अपना ही है, वी कैन डू इट वेरी इजीली, ठीक है। तो ये मैक्रो सिलेबस जो भी है ये मैक्रो सिलेबस इंटरप्रिटेशन है। तो इसमें एक एक टॉपिक को मैं लेके लाइक वी विल बी डिसइंटीग्रेटिंग इन द फर्दर सेशंस। हेंस, thank you for watching this lesson. Have an awesome day. Jai Hind.